Okay, bachcho. So this is the chapter ionic bonding we have finished in the last class, right? And in today's class, we are going to talk about the MCQs of this chapter, right? So here it is, the MCQ number 1. Which statement about solid calcium chloride is correct? Yes. कौन मुझे बता सकता है इसका आंसर? चलें, कौन बताएगा मुझे? अब्दुल मुईज, अबीहा, अफीफा, एमन, Ali Aslam, Asma. We have a lot of students over here that are very familiar with this chapter, and I think they all are able to answer this question, right, बच्चों? So मैं बताऊं? Asma बताएंगी. चलें, Asma बताएं. Sir, it is insoluble in water. Part D. Why it is insoluble in water? मैं बताऊं? Because it is not a compound. It is just an element. No, sorry, it's a compound. Yeah, so you know there's ionic compounds are soluble in water. So why are you talking about insolubility in the water? तो सर मैंने इसको गलत पढ़ा, मैं समझी ये एलिमेंट है. Okay, so which one is the right answer then? It conducts electricity. No, it is not a complete Sir, may I statement. जी बताएं. Sir, it has an ionic lattice structure. Yes, the right answer is C. It has an ionic lattice structure. The right answer is C. You can see this. It conducts electricity definitely, but in molten and aqueous state. So this is not the complete statement. That is why it is wrong, right? It has low melting point. No, ionic compounds have high melting point, right? And ionic compounds are soluble in water. So the only right statement is this, right, Asma? Yes, sir. Question. पूछें. Sir, why does it have a low melting point, and why does it only conduct electricity in its molten and aqueous state? We talked about it in the last class. As you remember, the properties of ionic compounds. Ionic compounds can conduct electricity in aqueous and molten state because they have free ions in these two states, right? When they have free ions, they can conduct electricity. And you saw the giant ionic lattice, a single positive is attracted by 6 negative and a single negative is attracted by 6 positive. That is why to break that lattice, you require a lot of energy. That is why they have high melting points, right? And they have Yes, ions sir. in water. So that is why this is the right answer. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, then the second MCQ is magnesium oxide has a high melting point. It is used to line the inside of furnace that operate at high temperatures. Why does magnesium oxide has a high melting point? Yes, Afifa. D. D for doll, right? Yes. Yes, it is not metal, so it does not have metallic bonding, right? It has a force of attraction between molecules, no. And it is about ions, right? And it is not a simple molecular structure. The right answer is D, right? It is an ionic compound, right? Yes, sir. And Yes, sir. Okay, so which substance when molten conducts electricity? कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? मुझे बताएंगे. सर मैं बताऊं? चलें अभी हाँ बताएं. जी अभी आप. सर B. B for ball, right? The right answer is cesium chloride because cesium is metal and iodide is non-metal. So when they combine together, they will form what? Ionic compound. And we know that ionic compounds can conduct electricity in molten state, right, bacho? Yes, sir. Right. Yes, yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Yes, question number 4. The table shows some properties of 4 substances. Which substance is an ionic compound? G. Which one of you are going to tell me this answer? Yes. So I think Ayan can answer. Yes, Ayan. Ayan, can you answer? Ayan, can you hear me? चलें शयान बताएंगे मुझे. जी शयान. Sir, I guess it's B. B for ball. Let's see. The melting point is high. Not conduct electricity in
solid state, conduct electricity in water, conduct electricity in aqueous state, and soluble in water. Right? You are absolutely right. The right answer is B. Right? So high melting point भी है, electricity conduct भी करता है aqua solution में, solid में नहीं करता और पानी में dissolve हो सकता है. Very good, perfect. Then question number 5 is, which statement is correct for all ionic compounds? For all ionic compounds. Yes. मुझे इसका आंसर देंगी कौन? मुझे इसका आंसर देंगे ईसा जी. ईसा. Sir, number C, they conduct electricity in molten or aqueous state. It conducts electricity in molten state. Yes, this is the right statement for all the ionic compounds. And you need to keep remember, this is not the word sharing that you can use. We know that in ionic compound there is completely transference from metal to non-metal. Yes. Metals just lose their electrons completely to non-metals. That's, you need to remember this. There is no sharing. There is complete transference, right? सर क्वेश्चन है they, सर, अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे तो फिर आयनाइजेशन नहीं होगी, मतलब आयंस ब्रेक, आयंस नहीं बनेंगे तो फिर आयनिक कंपाउंड्स. अच्छा देखें, वाटर में डिसॉल्व सारे हो जाते हैं, बट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट देयर इज सम एक्सेप्शन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ वाटर. कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिसॉल्व नहीं होता. सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होता. बेरियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं होता. So few of the compounds that are not going to be dissolved, तो वहाँ exception है. But you need to remember this. यहाँ लिखा हुआ है molten state, यहाँ पर aqueous नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है molten. तो चाहे वो soluble Yes, हो, चाहे वो soluble ना हो, melt होने के बाद तो ion produce करेगा ना. जी सर. तो तब वो electricity conduct कर लेगा. ठीक है? Got it. Question number 6, right over here you can see this. There is a question number 6. When a piece of sodium is heated in the air, it reacts with oxygen to form an ionic compound, sodium oxide. In terms of electron, which statement correctly explain what happens when sodium reacts with oxygen? Yes. So Iman Malik, can you answer me today? Iman Malik. Okay, yes, Judan, can you answer? Yes, Judan, can you answer me today? Yes, Ifra, can you answer me today? अच्छा, आप लोगों को Sir, मेरी can I आवाज आ रही answer? है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है. तो ये आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे यार? ये Sir, B. सर बी कौन बता रहा है मुझे? Sir, मैं चले मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर बी है या नहीं. So we know that sodium atom loses to a sodium atom loses 2 electron. Sodium atom तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना. सर बी नहीं. 2 sodium atoms each lose 1 electron with a both transfer to oxygen atom. D is the right answer. Right, बच्चों? Yes sir. D is Yes, the right sir. answer. Each Yes, sir. sodium atom lose 1 electron, right? And then 2 electrons are going to be transferred to the oxygen atom. That's right. Okay. Then question number 7. ये थोड़ा सा difficult है, थोड़ा सा tricky है. So X represent the element of atomic number 8 and Y represent the element of atomic number 19. The two elements react together to form a compound. Which row is correct for the compound form? चलें, ये मुझे बताएंगी, ये मुझे बताएगा कौन? ये बताएगा मुझे अब्दुल मुईज बताएंगे. चलें अब्दुल मुईज, आपने मुझे इसका आंसर बताना. सर मैं बताऊं. अब्दुल मुईज बताएंगे. Sir, I think the answer is B. B for ball, right? Yes, sir. B for ball, right? Okay, so if the element X having 8 electrons, that means it has 2 electrons going to receive in the last shell. And if Y has 19 electrons, that means the charge of this is 1. So this one will over here and this 2 will over here. So the formula is Y2X. Yes,
and this is an ionic compound. The right answer is B. Very good. Perfect answer. Okay. Then question number 8 is an ionic compound has the formula XY where Y is a non-metal. Which statement about XY is correct? Yes. इसका आंसर मुझे बताएंगे कौन? मुझे बताएंगे इसका आंसर मदी. जी मदी. Yes, sir. Yes, मुझे इसका आंसर बताएंगे. चलें. Yes, sir. मुझे इसका आंसर बताएं. Sir, I think so इसका आंसर होना चाहिए A. A for apple, right? Yes, sir. Okay. So an ionic compound is an atom of X lost at least one electron to form a positive ion. Both X and Y share. Share का लफ्ज़ आप यूज नहीं कर सकते ना ionic compound के लिए. So this is wrong. Element X is also non-metal. अगर Y non-metal है तो X non-metal होगा तो ionic compound नहीं बनेगा. XY will not conduct electricity when liquid. ये बात भी गलत है. An atom of X lost at least one electron because ये non-metal है तो electron loss कौन करेगा? Metal. Right बच्चों? Yes, sir. Okay, आप ये 2 MCQs पढ़ लें जब तक अजान का हम वेट कर लेते हैं. ठीक है? ओके सर. वाला है. चलें आसमा बताएंगे मुझे. Yes, आसमा बताएंगे मुझे. Sir, question 9 का आंसर है part A. Part A. In order to form a compound with oxygen, an atom of group 2 element must transfer 2 electron to an atom of oxygen. क्या बात है? क्या बात है? जबरदस्त. Very good. The very perfect answer from you. Yes. किसी को अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको समझा सकता हूँ. क्लियर है बच्चों? आसान है? सर आप मुझे ये फिर से Yes, समझा sir. सकते हैं? देखें, अगर ग्रुप ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6. तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन. अगर कोई मेटल ग्रुप 2 का होगा तो उसके आखिरी शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मेटल इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा. राइट? सही है सर, मैंने उसको उल्टा ले लिया था. सही है. कोई मसला नहीं. जस्ट 10 आयान ही बताएंगे मुझे. आयान 10th आंसर बताओगे मुझे. आयान, सर ये बी होगा. which substance when add to pure water will produce a solution which conduct electricity? क्या आंसर होगा इसका? ए होगा. ए आंसर होगा इसका. वेरी गुड. इसका ए आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक कंपाउंड जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो आयंस प्रोड्यूस करेगा, और जब वो आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. वेरी गुड. चलें, दिस बताइए कौन बता सकता है मुझे इसका आंसर? एमन सनोवर बता सकती हैं. एमन सनोवर बता सकती हैं इसका आंसर आप? एमन. चले इफ्रा बताएंगे मुझे. इफ्रा बताइए. सर ए. इफ्रा बता रही है which diagram correctly show the arrangement of ions in a solid sodium chloride. तो each sodium should have chlorine. Very good. And chlorine के पास सोडियम, क्लोरीन के पास सोडियम, क्लोरीन के पास सोडियम, क्लोरीन के पास सोडियम, सोडियम सोडियम. वेरी गुड. 2 सोडियम एक साथ नहीं हो सकते, 2 क्लोराइड एक साथ नहीं होते, 2 सोडियम एक साथ नहीं हो सकते. वेरी गुड. So the right answer is A. Perfect. Yes. 12 MCQ मुझे कौन बताने वाला है? Yes, Sudan. Can you hear me बेटे? Yes, Sudan. सुन सकती हो बेटे? Yes, Sudan आंसर नहीं दे रही है मुझे. Zuhair, can you listen me? Zuhair, Namir. चलें, Zuhair मुझे बताएं इसका आंसर. Question number 12. Next is for Neelam Dehra. Neelam, next question आपका है बेटे. आप इसको देख लें. Sir, C. Question number 12 का आंसर क्या बोल रहे हैं आप जुहेर? C. C बोल रहे हैं. C बोल रहे हैं. What happens when sodium chloride melts? Very good. जब आप सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हो तो उस सोडियम और
क्लोराइड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आहिस्ता 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 क्या हो जाएगी, वो आहिस्ता 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 ओवरकम हो जाएगी जब ये वो आयंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वेरी गुड। 13 नीलम जहरा। नीलम जहरा, can you answer the 13 MCQ? Sir, C, I guess. C. Okay, the compound formed between element X and Y is ionic. Which statement about element X and Y is correct? X and Y both are left hand side in the periodic table. ये नहीं हो सकता, अगर दोनों ही left hand side पे होंगे तो metals होंगे। X and Y are both at the right hand side, दोनों right hand side पर होंगे तो वो non metals होंगे, ठीक है ना। X and Y both are transition metal, दोनों metal होंगे तो definitely काम नहीं चल सकता। X is at opposite side of the periodic table than Y. This is the right answer. D is the right answer. एक मेटल इधर है तो नॉन मेटल उसकी अपोजिट साइड पे होगा, ठीक है ना। अपोजिट साइड पे होते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक ही साइड पे होंगे या तो नॉन मेटल होंगे या तो मेटल्स होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे आंसर कौन देगा? नमीर, कैन यू आंसर मी? नमीर सुभानी। सर 14 का ना? 14 का बिल्कुल। सर आई गेस डी। डी फॉर बॉल। सर डी मैंने कहा। सर मैं बताऊं? मैं बता दूं। पहले बताएं कौन बता रहा था? सर बी है, सर बी है। बी फॉर बॉल, राइट? यस सर। Okay, so you can see this. Which statement describe ionic bonding? Ionic bonding की definition आपने बतानी है, वो आपको बता चुका हूँ। Electrostatic force of attraction between opposite charge ion. This is the right definition. This is the perfect definition for any ionic compound. ठीक है? Now, question number 15. Which substance can conduct electricity by the movement of ions? G. बच्चों, Sir, can I इसका आंसर क्या answer? होगा? मदी आपके अलावा भी मुझे किसी से पूछना चाहिए। अहमद बताएंगे मुझे। अहमद, कैन यू आंसर मी? Sir, I don't know the answer to this question. इसका आंसर क्या होगा? Sir, I would say it should be copper. B? नहीं बेटे यार, नहीं। कल मैंने बताया ना आपको, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सिर्फ मेटल्स होते हैं, जो अकेले मेटल्स या अकेले एलिमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो किसकी वजह से होगी? कंपाउंड्स की वजह से होगी। कंपाउंड्स जो होते हैं ना, कंपाउंड्स, वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अली अस्लाम, क्या आंसर होगा इसका? सर डी है। इसका आंसर होगा डी। आयोनिक कंपाउंड इज एक्चुअली दिस is the compound, और जो कंपाउंड होते हैं, the combination of metal and non metal या combination of two different elements, वो होते हैं कंपाउंड। और जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयंस की वजह से। जो अकेला होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए करेगा, ठीक है बेटे। अहमद, राइट सर। क्वेश्चन नंबर 16। जी मदी, आप बताइए। Sir, just a minute. Let me read the question. क्वेश्चन नंबर 17 ईमान मलिक, आप बताएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगी अफीफा। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगी अस्मा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना मदी। सर इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी बता रहे हैं आप। ये कह रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हिच कंपाउंड हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से सबसे कम किसका होगा जिसके दरमियान चार्जेस की अट्रैक्शन सबसे कम है? तो डेफिनेटली सोडियम और क्लोराइड के दरमियान +1 और -1 है, जो कि सबसे कम नजर आ रही है अब तक। बाकी +2 +3 पर जा रही है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है। वेरी गुड। यस, 17 किसके लिए था? ईमान मलिक के लिए था। जी मान। Sir, the answer will be D. Answer will be D. An ionic compound is formed by electrons transfer from metal to non-metal. जबरदस्त बेटे, ये आपने याद रखना है। देखें, शेयरिंग का लफ्ज आएगा, पहली फुर्सत में काट देंगे।
This is ionic compound. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स going to transfer from metal to non-metals. Perfect, perfect. Iman, very good. Yes, next. 18 किसका था? 18 अफीफा का था. Sir, yes. जी अफीफा. Sir, I think it's B. B for ball. Yes. The table gives the arrangement of electrons in an atom of 4 different elements. Which statement does not form an ionic compound with chlorine? Chlorine is itself non-metal ना, तो डेफिनेटली इन चारों में से जो नॉन मेटल होगा वो क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं. तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन आए तो वो मेटल्स होते हैं. ये वाला मेटल नहीं है तो ये नहीं बना सकता. ठीक है, it cannot form ionic bond with chlorine. राइट बच्चों? राइट सर. 19 किसका था? आसमा का था. जी सर, इसका आंसर होगा सी. सी. D. Which C statement में C. explains why magnesium oxide with high melting point, magnesium oxide are strongly attract towards oxide ion. Okay, magnesium के जो आयन होते हैं वो ऑक्सीजन के आयन से बहुत ज्यादा strongly attracted होते हैं. That's why they are having high melting point. Very good. चलें 20 मुझे बताएंगी अबीहा. 20 अबीहा का है, 21 अयान का है, 22 ईसा का है. अबीहा, अयान, ईसा. Sir, D. D. Why does molten sodium chloride conduct electricity? Because sodium ions and chloride ions are free to move. Very good. They are free to move, so they can conduct electricity. Zabardast. Okay. D is the right answer. Okay. Ayan. 21. C, sodium chloride. Which material has the highest melting point? We know that the only ionic compound over here is sodium chloride, so it has the highest melting point. Very good. 22. Isa. Yes, sir. 22 का आंसर आपने बताया. Sir, is it C? Which statement explained why sodium chloride has a lower melting point than magnesium oxide? The attraction between sodium ion is weaker than. Very good, perfect. ये मैंने आपको वैसे क्लास में बताया भी था और ये बहुत अच्छा MCQ यहाँ पर आ भी गया बेहतरीन स्टेटमेंट के साथ. वेरी गुड ईसा. चलें 23 मुझे बताएंगे अब्दुल मोइज. अब्दुल मोइज 23 आपका है, 24 अली असलम का है और 25 जो है आपके पास अहमद का है. अहमद 25 आपका है. 23 अब्दुल मोइज. Sir, A. Which of the following when add to the water make a solution that a good conductor of electricity? क्या बता रहे हैं आप? Sir, A. No, not A. It is D. क्योंकि A insoluble है. Calcium carbonate is insoluble. Sir, 25 का C होगा. अहमद बता रहे हैं 25 का C. When they react together with which pair of element from an ionic compound? Lithium and oxygen. Very good. अहमद perfect. जी अली असलम 24 का. सर C. C. ये कह रहे हैं W क्या है? Does not conduct electricity under any condition. W जो है किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. तो ये कौन होगा? ये नॉन मेटल हो सकता है. ठीक है, इन दोनों में से कोई, इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है. फिर ये कह रहे हैं X जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, ओनली इन एक्वस स्टेट. तो ये एसिड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. डी आंसर नहीं हो सकता. When molten conduct when molten and solid. सॉलिड में भी कर रहा है, molten में कर रहा है, डेफिनेटली क्या होगा? मेटल होगा. क्या होगा? ये मेटल होगा. तो राइट आंसर आपके पास क्या है? सी. ठीक है बच्चों? यस सर. ओके 26. Right, sir. लास्ट MCQ. जुहेर बताएंगे मुझे इसका आंसर. जुहेर, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस? जुहेर. Sir, hydrogen chloride. Which one is an ionic compound? Ionic compound बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ना जुहेर. Oh, then it's B, sir. B. It is calcium chloride. The right answer is B. It is calcium chloride. Very good. This is calcium chloride. देखिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी. कोई भी MCQ ऐसा आया जो कि आपकी सोच से भी ज्यादा था. कोई सा भी एक MCQ भी एक ऐसा नहीं था. सारे आसान थे. आप सब बहुत आराम से सारे MCQs कर सकते थे. इनमें से कोई भी MCQ ऐसा नहीं आया जिसमें आपको फील हुआ या मुझे फील हुआ कि आप लोग नहीं कर सकते. सारे के सारे इंतहा के आसान MCQs थे. ठीक है ना? तो आयोनिक कंपाउंड के MCQs इतने ही आसान आ सकते हैं अगर आप लोग
इसको परफेक्टली याद कर लो, परफेक्टली इसको कर लो, तो डेफिनेटली आपसे अच्छा कोई आयोनिक कंपाउंड कर ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों? ओके सर, ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कल आप लोगों को दिया था बच्चों, वो क्या था? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह किए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने किया, गिव बोथ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड चार्ज ऑफ द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम आपके पास होता है इस तरह का, राइट? अपने आंसर्स देख लीजिएगा आप लोग। दिस इज मैग्नीशियम, राइट? एंड देन फ्लोराइड। इफ यू टॉक अबाउट फ्लोराइड, तो फ्लोराइड आपके पास कैसा होता है? फ्लोराइड आपके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन, राइट, इन द लास्ट शेल, एंड एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, राइट बच्चों? इसी तरह का बनाया था स्ट्रक्चर। जी सर, ऐसे ही बनाया था। Yes, ठीक sir. है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग चेक कर लें। क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पर बना हुआ है, देखें फर्स्ट शेल बना हुआ है, सेकंड शेल बना हुआ है, थर्ड शेल नहीं बना हुआ है। थर्ड शेल आप बनाएंगे, थर्ड शेल आप बनाएंगे। इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये डेफिनेटली रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो इसका चार्ज आएगा -1। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, तो इस पर भी चार्ज आएगा -1। ठीक है, और मैग्नीशियम क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस वजह से ये बन जाएगा इस तरह, और 2+, राइट बच्चों? Yes, sir. क्या कह रहे हो? कौन कह रहा है? क्या बात कह रहा है? कोई कुछ कह रहा था? सही है। उसके बाद लिखा हुआ है गिव 3 physical properties that are typical to ionic compounds, and we know that they are solid, right? Or you can say that they are soluble in water. They are soluble in water, and they can conduct electricity in aqueous state. They can conduct electricity in molten and aqueous state. In molten and aqueous state, right बच्चों? सर अगर मोल्टन और एक्वस को अलग अलग लिखें तो वो अलग पॉइंट्स खिलाए जाएंगे या वो नहीं जस्ट? नहीं, कंडक्टिविटी तो एक ही पॉइंट है ना, यस सर। इस वजह से। ठीक है, फिर लिखा हुआ है aqueous magnesium chloride is added to silver nitrate। अच्छा, ये अभी हमारा पार्ट नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था? जिंक ब्रोमाइड एंड जिंक कार्बोनेट आर बोथ आयोनिक कंपाउंड्स, प्रेडिक्ट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज अदर देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए उसने बता दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अलावा बताएं। तो दे आर सॉलिड, Sir, high melting point. एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखें यहाँ पर आप सॉल्युबल इन वाटर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर दिस के जिंक कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। ठीक है ना? तो आप ये नहीं लिख सकते कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये सॉल्युबिलिटी आपको सॉल्ट्स के चैप्टर में पता चल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? सॉल्ट्स के चैप्टर में आपको सारी सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी, कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, सब पता चल जाएगा। ये वाली बात बहुत आने लगी है पेपर में, ये वाली बात पेपर में बहुत आने लगी है, तो आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर रखनी है। ये पेपर में आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। कह रहे हैं जिंक रिएक्ट विद ब्रोमीन टू मेक जिंक ब्रोमाइड। Zinc bromide contains Zn+2 and bromide contain -1 charge. Explain in terms of movement of electron. So you can say that zinc loses 2 electrons, right? Zinc loses 2 electrons, which are received by each. Sorry, you can say that which are received by each bromine, या कह लें which, out of which कर लेते हैं इसको, हम कर लेते हैं out of which, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं out of which 1 electron is received by each bromine। ठीक है, zinc loses 2 electrons, out of which each electron is received by each bromine। ठीक है बच्चों, ये बहुत आ रहा है पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई? यस सर। ये आपको लिखना है। ये आप लिख सकते हैं कि 1 electron is received by 1 bromine, and
क्या लिख सकते हैं, two bromine receive 1 electrons और both electrons are lost by zinc। किसी भी अल्फाज में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने लिखना यही वाली बात है। ठीक है बच्चों, राइट सर। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया और इसमें आपने हर तरह के, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हम जब कर सकते हैं जब आप कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसको हम तब करेंगे। यहाँ पर आपका एक चैप्टर देखें, आपने सारा चैप्टर कर लिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर कि आपको ना आता हो या आपसे ना हो रहा हो, आपने सारा का सारा कर लिया। अब आप जरा मुझे ये बताएं कि आपको आयोनिक बॉन्डिंग में कोई भी सवाल पूछना है, सब कुछ क्लियर है आप सबको? ऑल क्लियर सर। क्लियर सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। चले, मुझे अली असलम हाथ उठाए हैं। अली असलम आप पूछिए, क्या पूछना है आपने? सर हमने सारे पास बस कर लिए। हाँ, मेरे पास जितने थे हमने सारे कर लिए और आयोनिक कंपाउंड की कम ही आते हैं पास पेपर्स। ओके सर। ठीक है, अगर देखेंगे ना अपने, अगर आपके पास कोई पास पेपर्स हो आप लोगों के पास, अगर वो पास पेपर्स अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आयोनिक कंपाउंड्स के उसमें पास पेपर ज्यादा हो, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि आयोनिक कंपाउंड में सॉल्ट्स भी ऐड होता है। आयोनिक कंपाउंड में फिर वो एसिड एंड बेसिस भी ऐड कर देंगे, फिर कोवेलेंट कंपाउंड भी ऐड कर देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह की मैंने कोई कहानी की भी नहीं है यहाँ पर ना, तो इसलिए ये सेलेक्टिव आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, ओके सर। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, किसी की भी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकता है। सर टेस्ट कब है? चैप्टर खत्म हो गया ना। टेस्ट यार, टेस्ट कैसे दोगे? सारे के सारे सवाल तो मैंने करा दिए तुम लोगों को, ये है, और सारे के सारे तुम लोगों ने खुद ही किए हैं। तो ये चैप्टर इतना आसान था कि आप इसका टेस्ट क्या देंगे? ये तो इतना आसान चैप्टर है आपके लिए, आप सबने इतना जबरदस्त तरीके से कर लिया इसको माशाल्लाह से। इंशाल्लाह कोवेलेंट बॉन्डिंग जब करेंगे तो दोनों का टेस्ट एक साथ लेंगे, सही है? ओके सर। ओके सर। अमीर कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने कहना था कि सर इस दफा अगर जो भी टेस्ट हो ना, तो आप वो ग्रुप पे पोस्ट कर दें, क्योंकि लास्ट 2 टाइम मेरे साथ यही हुआ है कि ग्रुप पे पोस्ट नहीं है और मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने बगैर पढ़े टेस्ट दिया। खैर मार्क्स तो सही आए थे, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। सही, ठीक है, डन हो गया। और बोले, और कुछ? नथिंग सर। और किसी का कोई सवाल, किसी की कोई बात जो वो कहना चाह रहा है वो कह सकता है, मैं सुन रहा हूँ आज, सबकी सुन रहा हूँ। सर जो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर, वो कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके सर, थैंक यू जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मदी पूछना चाह रहे हैं जी? मदी जी, मदी बोले। सर मैं रजिस्टर हो चुका हूँ सर, मुझे जो है रिकॉर्डिंग चाहिए थी सर। कोई मसला नहीं। अगर आप रजिस्टर हो चुके हो तो आपको ग्रुप में ऐड किया होगा, और जो ग्रुप है ना उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक खोलेंगे ना सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। ईसा कुछ कहना चाह रहे हैं? ईसा कही है। सर अगला टेस्ट कब होएगा? अगला टेस्ट जैसी कोवेलेंट बॉन्ड एंड होगा ना, तो दोनों का एक साथ टेस्ट होगा, सही है? ओके सर। जी अली अस्लम। सर अगर हमारे पास कोई सवाल नहीं, हम लीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप लोग के पास किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो लीव कर सकते हैं, और आप लोग मुझे बता सकते हैं इफ यू वांट द सेट ऑफ पास्ट पेपर्स एंड नोट्स, तो आप मुझे अपना एड्रेस लिखकर भी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है आपके घर तक पहुंचवा दूंगा, इंशाल्लाह डिलीवर करा दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको सर व्हाट्सएप बता दूंगा इसके बारे में। जी बिल्कुल, अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए, किसी को भी अगर वो नोट्स और पास्ट पेपर लेना चाहता है तो वो फिर वो मुझे अमाउंट कहाँ से पूछनी है? क्या कह रहे हो? अमाउंट कौन सी अमाउंट? मतलब वही आपके नोट्स की। उसके नोट्स के अमाउंट का हम देख लेंगे, आप फिलहाल मुझे मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं है। जो भी आप भेजेंगे ना उस हिसाब से फिर हम बात करेंगे कि भेजना टाइम उस बंदे के हाथ दिलवा देंगे या आप ट्रांसफर कर दीजिएगा ऑनलाइन, उसके बाद हम उसको भिजवा देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है बच्चों, ओके सर। एवरीवन ऑफ यू, एवरीथिंग क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलें, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और फिर हम उस चैप्टर को खत्म करने के बाद लेंगे आपका टेस्ट। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत कोई भी सवाल हो पूरे 7 दिन में जब दिल चाहे जब मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके ओके सर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz.